Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss Unit 4 of Computer System Architecture. In Unit 4, we will learn about what is computer, CPU, and what are the components of computer and what are the types of computer architecture. And in computer architecture we will learn about RISC, CISC, registers, micro operations, instruction format types, common bus system types, and at the end we will discuss important questions related to your exam. Now first I will tell you about what is computer. Computer is an electronic device which is used computer is a electronic device which is used to store information, to retrieve information in future. A computer is full electronic system. A computer is full इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. क्या है ये? फुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है विद हार्डवेयर और इन हार्डवेयर व्हाट विल बी इंक्लूड CPU, RAM, storage, etc. and software. While CPU, that is central processing unit, is the main part, is the main component. It is a brain of computer. ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए और डेटा के फ्लो को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर के अदर पार्ट्स में. सो वी कैन से a computer is a full electronic system with hardware, that is CPU, RAM, storage, etc. and software. While CPU is a central processing unit which is the main component and it is also called brain of computer and which is responsible for executing instructions, performing calculations and managing data flow for all other parts of computer. Now you can say a complete machine for input, processing, storage and output is made of various interconnected parts. That is known as computer system. Means a computer includes input, output, CPU, memory and there are so many other parts of computer like motherboard, CPU, RAM, storage, input output devices, etc. Power supply. CPU, it is a small chip on motherboard. It is a
small chip. What is a CPU? CPU is a small chip. और कहाँ पर होती है ये? मदरबोर्ड के ऊपर. Which carries out instructions and processing data. What will be the work of CPU? It fetches, then decode, and then executes. ये क्या करता है CPU? इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, उसको डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोलिंग अदर यूनिट्स लाइक GPU एंड RAM. Its internal parts are control unit, ALU, and registers. These are the internal parts. The brain of computer directing operation. This is called analogy. So we can say CPU is a combination of ALU, control unit, and registers. Now next topic is computer architecture types. Computer architecture types. There are basically categorized by memory organization or memory organization who categorized von Neumann architecture and Harvard architecture. First von Neumann architecture, second Harvard architecture. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने सिंगल मेमोरी फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को डेवलप किया और हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने सेपरेट मेमोरीज को. क्या कहता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर टाइप्स जो है ब्रॉडली उसको कैटेगराइज किया गया है बाय मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. वॉन न्यूमैन एंड वर्सेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर. एंड जो इसकी इंस्ट्रक्शन सेट है, दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. जो इंस्ट्रक्शन सेट है उनमें रिस्क एंड सिस्क आता है. रिस्क सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है क्योंकि ये फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है. सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड को ही एग्जीक्यूट करता है. जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो एक सिंगल मेमोरी स्पेस को यूज़ करता है फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा के लिए फेच करने के लिए सीक्वेंशनली. किसके द्वारा? CPU के द्वारा. और इट मेक द बेसिस फॉर मोस्ट ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स. और कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था? ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में. सेकेंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर. इसमें कुछ फीचर्स सेपरेट मेमोरी बसेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इंक्लूड है जो अलो करते हैं कि वो साइमल्टेनियसली फैचिंग करेंगे फॉर फास्टर परफॉर्मेंस के लिए, कॉमन इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसेस के लिए एंड एम्बेडेड सिस्टम के लिए. एंड थर्ड वन इज दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. फर्स्ट हमने अभी डिस्कस किया मेमोरी एंड डेटा फ्लो के बेसिस पर. एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे अब बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट. इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पर हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को. जो सिस्क है उसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर.
रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो सिस्क है वो मेनली फोकस करता है सिंगल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, सिंगल इंस्ट्रक्शंस executing complex task, and it simplify the programming but potentially slowing execution. It found in older system, and risk that is reduced instruction set computer ये यूज करता है यूज सिंपलर ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शंस को जो एग्जीक्यूट होती है फास्टली, और इसके लिए रिक्वायर है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, एंड ये हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और कई मॉडर्न डिवाइसेस को भी पावर अप करता है, लाइक ARM चिप्स। नाउ there are some more points which are important. Based on parallelism, based on parallelism, और ये किसकी टेक्सोनॉमी है? फ्लाइंस टेक्सोनॉमी। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है SISD, सेकेंड पॉइंट है SIMD, थर्ड पॉइंट है MISD, फोर्थ पॉइंट है MIMD। SISD की फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन and multiple data। SISD एक ट्रेडिशनल सीक्वेंशनल प्रोसेसिंग है। SIMD वन इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करता है कई डेटा के पॉइंट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली, जैसे GPU। MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वन डेटा स्ट्रीम के ऊपर दिया जाता है। MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट डेटा के ऊपर, जैसे मल्टी कोर CPU वगैरह। कुछ अदर आर्किटेक्चर्स हैं जैसे माइक्रो आर्किटेक्चर, सेकेंड है डेटा फ्लो, थर्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग। जो माइक्रो आर्किटेक्चर है इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है।
आईएसए की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशंस को जब डेटा अवेलेबल होता है, नोट बाय ए प्रोग्राम काउंटर। क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करता है क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्यूटेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स एंड माइक्रो ऑपरेशंस। रजिस्टर्स एंड माइक्रो ऑपरेशंस। रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस ये फंडामेंटल एलिमेंट्री एक्शंस हैं जिनको डेटा जो सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, और ये डिफाइन करता है, बताता है कि कैसे इंफॉर्मेशन मूव करती है और कैसे एक डिजिटल सिस्टम से दूसरे डिजिटल सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। और इसको कैटेगराइज किया गया एज ए रीडर, ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक, लॉजिकल, शिफ्ट ऑपरेशंस जैसे कि लोडिंग, एडिंग, एंडिंग और शिफ्टिंग बिट्स एट्सेट्रा। और ये रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज को यूज़ करता है। इसकी जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप्स ऑफ रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस। फर्स्ट इसकी टाइप आती है रजिस्टर ट्रांसफ़र। रजिस्टर ट्रांसफ़र रजिस्टर ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि रजिस्टर और मेमोरी के बीच में डेटा मूव करता है, और कैसे कैसे करता है, पहले लोड होता है, फिर स्टोर करता है, देन मूव होता है। डेटा को मेमोरी से रजिस्टर में लोड किया जाता है, फिर रजिस्टर से डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, फिर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को मूव किया जाता है। सेकेंड टाइप आ गई अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, लाइक ऐड। एग्जांपल R1 रजिस्टर है जिसमें R1 प्लस R2 दो रजिस्टर में जो वैल्यू है वो प्लस होके किस में शिफ्ट हो रही है, R1 में। सेकेंड टाइप है सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, सेम R और इसमें हमने R1 माइनस R2 करके दिखा देना है, माइनस करके। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी आता है इसके अंदर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में एग्जांपल दे सकते हो, जैसे R1 रजिस्टर है, इसमें शिफ्ट कर रहा है R1 प्लस 1, मतलब रजिस्टर 1 में जो भी वैल्यू उसमें 1 प्लस करके वो किस में जा रहा है, फिर R1 में जा रहा है। और R1 ये हमने एरो का सिंबल उल्टा लिया है कि मतलब राइट हैंड साइड से वैल्यू इधर शिफ्ट कर रही है, 1 माइनस करके वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है अरिथमेटिक में कॉम्प्लीमेंट। R1 रजिस्टर है माइनस जो हमें इसमें हम क्या करेंगे, R1 का कॉम्प्लीमेंट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आगे आपके पास थर्ड टाइप है आपकी लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर आप लोगे बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होंगे रजिस्टर के ऊपर, एंड, और, एक्सॉर, नॉट। अब जो एंड ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होगा, R1
में शिफ्ट करोगे R1 एंड R2 की वैल्यूज लेकर, और अगर और करना है तो R1 और R2 लिखोगे। नेक्स्ट है R1 में आपने एक्सोर इम्प्लीमेंट किया R1 R2 के ऊपर, फिर शिफ्ट कर दिया R1 में। नोट वाले केस में कैसे करोगे, R1 का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, उसको R1 में शिफ्ट कर दोगे। इसको बिट वाइज नोट कहते हैं। ठीक है। अब फोर्थ टाइप इसमें कौन सी आती है, शिफ्ट। शिफ्ट में क्या आता है, विद इन एक रजिस्टर मूविंग बिट्स विद इन ए रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर के साथ ही बिट्स को मूव करना। इसमें भी टाइप्स है, लॉजिकल शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट, और थर्ड टाइप इसमें आती है रोटेट शिफ्ट। जो लॉजिकल शिफ्ट है वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा बिट्स को, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इंसर्टिंग जीरो। अरिथमेटिक शिफ्ट में साइन बिट ड्यूरिंग दिस शिफ्ट क्या करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। रोटेट में क्या होगा, बिट्स शिफ्ट होंगे और ऑन दी अदर एंड पर वो इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें रजिस्टर ट्रांसफर एक लैंग्वेज होती है जिसे RTL बोलते हैं, RTL। ये क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ये सिंबॉलिक नोटेशन यूज करती है, जैसे कि हमने अभी यूज किया ये वाला। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। R1 में हमने शिफ्ट किया R2 प्लस R3 को। तो ये डिस्क्राइब करती है कि जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो मतलब ये जो सिंबल्स यूज़ किए हैं ये डिफाइन करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को, जो डिफाइन करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशंस को बाय स्पेसिफाइंग रजिस्टर्स और जो भी उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स एंड देयर टाइप्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। एक इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है वो डिफाइन करता है कि एक सीपीयू की जो कमांड है या इंस्ट्रक्शंस है वो बाइनरी में स्ट्रक्चर्ड है, और उसमें ऑपकोड और ऑपरेशन फील्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे कि क्या बताता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये डिफाइन करता है कि हाउ ए सीपीयूज इंस्ट्रक्शन is structured in binary features and opcode जिसे ऑपरेशन कोड कहते हैं एंड ऑपरेंड फील्ड्स जिसे डेटा और एड्रेसेस कहते हैं। और जो टाइप्स है इसकी वो बेस्ड है ऑपरेशन जो भी ऑपरेंड काउंट है उसके ऊपर, जैसे कि 0 एड्रेस जो कि स्टैक बेस्ड है, सेकंड
वन एड्रेस ये यूज करती हैं एक्यूमुलेटर को। थर्ड है टू एड्रेस uses source destination और वन implicit ठीक है। टू एड्रेसेस में आप क्या बताओगे? सोर्स डेस्टिनेशन और वन इम्प्लिसिट को यूज किया जाता है। फोर्थ हमारे पास आता है थ्री एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें हम एक्सप्लिसिट सोर्स वन सोर्स टू और डेस्टिनेशन को इंक्लूड करते हैं, प्लस स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट्स होते हैं जैसे आर टाइप रजिस्टर, आई टाइप इंटरमीडिएट इमीडिएट, जे टाइप जंप रिस्क के लिए यूज होते हैं। मेन कंपोनेंट कौन कौन से इसके आते हैं? मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फर्स्ट इसमें आता है ओपी कोड, जिसे हम ऑपरेशन कोड कहते हैं। ऑपरेशन कोड एग्जाम्पल ऐड, मूव एटसेट्रा। सेकेंड आ गया ऑपरेंड्स, डेटा और मेमोरी और रजिस्टर एड्रेसेस। ऑपरेशन एक्ट्स अपॉन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसमें आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आते हैं। एड्रेसिंग मोड्स ये डिटरमाइन करती है कि ऑपरेंड को कहाँ पर लोकेट करना है, इमीडिएट में, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एड्रेसेस पर। टाइप्स जो कि बेस्ड है नंबर ऑफ एड्रेसेस, जैसे अभी मैंने आपको भी डिस्कस किया था जीरो एड्रेस। अब जीरो एड्रेस में क्या होता है? कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होती है, सिर्फ स्टैक यूज करता है ये। इसमें जीरो एड्रेस वाले में पुश और पॉप यूज होता है। पुश एंड पॉप मतलब कोई भी वैल्यू है 7 6, तो ये इसमें क्या हो रही है? पुश हो रही है। अगर निकालनी है पहले 6 फिर 7, तो इसको बोलते हैं पॉप। पुश और पॉप मेथड यूज होता है। वन एड्रेस फील्ड जो है वो वन इम्प्लिसिट एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। जो वन एड्रेस है वो वन इम्प्लिसिट एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे ऐड एम इम्प्लाइज एक्यूमुलेटर प्लस एम, ऐसे इसमें यूज होता है। टू एड्रेस में सोर्स डेस्टिनेशन होते हैं और डेस्टिनेशन जो है वो सोर्स बनते हैं। इसमें हम ऐसे लिखते हैं मूव R1, R2 इम्प्लाइज R1, जो कि किसके इक्वल होता है? R2 के इक्वल। थ्री एड्रेसेस में सोर्स 1 सोर्स 2 डेस्टिनेशन होता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेंड्स होते हैं। एग्जांपल जैसे ऐड लिखा
R1, R2, R3 कॉमे के साथ सेपरेशन करनी है। फिर इम्प्लाइज इसमें R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट्स में MIPS और रिस्क आता है। मॉडर्न जो CPU है वो एफिशिएंसी के लिए और फिक्स लेंथ के लिए इन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। अब इनमें जो फॉर्मेट्स आ गए R टाइप, मॉडर्न जो CPU है उनमें कौन कौन से टाइप यूज़ होते हैं। एक होता है R टाइप जिसे रजिस्टर कहते हैं, और सेकंड टाइप है I टाइप जिसे इमीडिएट कहते हैं, इमीडिएट। और थर्ड टाइप है J टाइप जिसे हम जंप कहते हैं। R टाइप रजिस्टर जो है इसमें क्या बताया गया कि फॉर रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक, मतलब R टाइप जो है रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे OP कोड वगैरह यूज़ किया जाता है। और I टाइप इमीडिएट फॉर ऑपरेशन विद इमीडिएट वैल्यूज़ और मेमोरी लोड्स और स्टोर, भी जो भी मेमोरी लोड है स्टोर में इमीडिएट जो वैल्यू होगी उसके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म होने उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे OP कोड, RS, RT इमीडिएट वैल्यू ऑफसेट। और J टाइप जो है जंप है कंट्रोल फ्लो के लिए, जैसे OP कोड है या जंप एड्रेस है। और अदर इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं अदर, जिसमें वो बेस्ड है ऑन CPU ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सेकेंड बेस्ड है ऑन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टाइप के ऊपर। बेस्ड ऑन CPU में ये बताना है आपने कि सिंगल एकमुलेटर यूज़ होता है, जनरल रजिस्टर यूज़ होता है, स्टैक बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन टाइप में आप बताओगे कि मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और उसके टाइप्स होगी, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉमन बस सिस्टम। कॉमन बस सिस्टम CPU को कनेक्ट करने, CPU मेमोरी और इनपुट और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इसकी टाइप्स जो हैं, डेटा बस है, डेटा बस किस लिए यूज़ की जाती है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एड्रेस बस यूज़ होती है जो एड्रेसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल बस जो है वो ट्रांसफ़र करती है कंट्रोल सिग्नल्स को। और 16 बिट सिस्टम जो की जो इंडिकेट करता है डेटा विड्थ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस important questions on the basis of your previous year questions or syllabus. Unit 1 Logic Gates and Boolean Algebra. Most expected questions है 2 marks questions. 4-5 lines में मैंने एग्ज़ाम रेडी बेस पर लिखा है। What is a logic gate? Logic gate में आप क्या लिखोगे कि it is an electronic circuit which performs a logical operations on one or more binary inputs and it provides a single binary output. And logic gates are the basic building blocks of digital system and they operate on Boolean logic. Example and, or, not, NAND, NOR, XOR, etc. These are the logic gates. Now next, why are NAND and NOR called universal gates? हम NAND और NOR को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज बोथ आर द यूनिवर्सल, दोनों को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं क्योंकि एनी बुलियन फंक्शन, कोई भी बुलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग NAND गेट्स और NOR गेट्स, और दे कैन रियलाइज एंड और नॉट ऑपरेशंस एंड दे सिंप्लीफाई सर्किट डिज़ाइन। नेक्स्ट है डिफाइन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल
लॉजिक सर्किट्स को और डील करता है बाइनरी वेरिएबल्स के साथ 0 और 1, लॉजिकल ऑपरेशन के साथ जैसे कि एंड और नॉट। इट्स वाइडली यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर टाइप्स। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज ए एसओपी फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट को एसओपी कहते हैं। एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्मेट है जिसमें मल्टीपल एंड टर्म्स को यूज़ किया जाता है। एंड टर्म्स जो है उनको और किया जाता है। एंड टर्म्स को हम मिन टर्म्स बोलते हैं। एसओपी फॉर्म जो है कॉमनली यूज होती है डिजिटल सर्किट रियलाइजेशन में। नेक्स्ट है के मैप। कॉर्न मैप एक ग्राफिकल मैप है जो कि बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स को जो रिक्वायर्ड है। के मैप फास्टर है, लेस एरर प्रोन है देन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन फॉर अप टू 5 वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें 20 to 20 लाइन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। जो आप करोगे इसको एक्सपैंड खुद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एंड और नॉट गेट्स विद ट्रूथ टेबल्स। एंड गेट जो है वो हमें 1 इनपुट कब देता है, जब सारी इनपुट्स 1 होगी। इसमें आप ट्रूथ टेबल भी बना देना, ठीक है। ट्रूथ टेबल बना देना ऐसे ए और बी 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे वैल्यू लेना और रिजल्ट। तो जब दोनों 1 होंगे तो आपके पास 1 आएगी आउटपुट, अदरवाइज क्या आएगी 0। तो ये जो गेट्स है फंडामेंटल है फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिजिटल सर्किट्स भी बना के दिखा देना ऐसे, ठीक है। ए और बी, अगर ए आपके पास क्या जा रहा है नेगेटिव और बी भी नेगेटिव जा रहा है तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ रहा है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ठीक है। तो एंड गेट ऐसे आपने सारे सर्किट्स बना के दिखाने हैं, पूरे डिटेल में लिख देना है। Truth table describe the output for all possible input combination and gate perform multiplications and OR perform जो OR हैगा लॉजिकल गेट वो एडिशन को परफॉर्म करता है, ये मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है, नोट परफॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंटेशन को। मतलब अगर मुझे इसी यहीं पर अगर डायग्राम दिखाना है और का तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो ये चीज़ ऐसे एस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तीनों के आपने टेबल बनाने हैं, तीनों के लॉजिक गेट्स भी बनाने हैं और एक एक एग्जांपल देके समझा देना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बुलियन अलजेब्रा लॉज। बुलियन अलजेब्रा लॉ के अंदर क्यूमिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, नल, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह ये सारा शामिल है और ये लॉ हेल्प करते हैं मॉडिफाई करने में और सिंप्लीफाई करने में बुलियन एक्सप्रेशंस को। और डी जो हमारे पास डे मॉर्गन्स हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है स्पेशली यूजफुल है कन्वर्टिंग एंड और लॉजिक को एंड और नॉर गेट को लॉजिक गेट्स को। सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस करती है हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को। सॉप और पोज के बारे में फॉर्म बताना है जिसमें आप के मैप की एग्जांपल लेकर भी इसको समझा सकते हो कि सोप और ऑफ एंड टर्म्स होता है और पोज जो है वो एंड ऑफ और टर्म्स होता है। सोप यूज़ करता है मिन टर्म्स वेयर एज पोज यूज़ करता है मैक्स टर्म। सोप रेफर करता है के मैप की इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीफिकेशंस को और पोज फुल ऑफ नॉर बेस्ड डायग्राम है। आपने इसमें क्या क्या बताना है, पहले तो ये मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद आपने इसका के मैप बनाना है। के मैप के बाद आपने इसकी इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। देन है हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 40 to 45 लाइन्स के होने चाहिए। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप इसको एक्सप्लेन खुद कर लेना। बुलियन एक्सप्रेशन का मीनिंग लिखना है, के मैप बताना है और उसके स्टेप्स लिख देने हैं। के मैप सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व है प्लॉटिंग द गिवन बुलियन एक्सप्रेशंस को आप जब के मैप में बनाते हो एडजेसेंट वन ग्रुप इन द पावर ऑफ 2 ईच ग्रुप एलिमिनेट करते हैं 1 और मोर वेरिएबल्स को और सिंप्लीफाइड करते हैं एक्सप्रेशंस को जो कि रिक्वायर्ड है फॉर
लॉजिक गेट्स के लिए। और ये मेथड मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट, पावर और डिले को, और वाइडली इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में। नाउ नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसका क्या करना है, के मैप ड्रॉ करना है। कैसे करोगे के मैप ड्रॉ, ऐसे स्टेप्स तो लिखने ही लिखने हैं, के मैप ड्रॉ भी करना है। इसमें आगे आपके पास ए बी सी 0 1 3 2 4 5 6 7। अब यहाँ पर 1, जहाँ पर 1 है वहाँ पर ये 1 लिख दो, और यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 आएगा। ये एज कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, बीज डैश सी डैश ऐसे लिख देना, बी डैश बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। 3 पर लगाना 1, 5 पर है, फिर 7 पर। तो इसका एक क्या बनेगा, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, दोनों में कॉमन क्या है सी, क्योंकि इधर से कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज ए हाफ एडर। हाफ एडर क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है जो ऐड करता है 2 बाइनरी डिजिट्स को, प्रोड्यूस करते हैं 2 आउटपुट सम एंड कैरी, डज नॉट कंसीडर एनी कैरी इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो सिलेक्ट करता है 1 इनपुट को मल्टीपल इनपुट से, और ये बेस्ड है सिलेक्ट लाइन के ऊपर। इट ऑल्सो कॉल्ड है डेटा सिलेक्टर। इसमें अपने क्या फॉर्मूला बताना है, 2 raised to power n is to n। फिर उसके बाद आगे आपके पास फुल एडर विद द लॉजिक डायग्राम। मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं इसमें, और एक एक लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है। बाकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सारा डिटेल में करवाया है, आप अपनी तरफ से खुद थ्योरी बना सकते हो। फुल एडर ऐड करता है 3 बिट्स को, 2 इनपुट होते हैं, 1 कैरी होती है, कैरी इन होता है, प्रोड्यूस करता है सम एंड कैरी आउटपुट। फुल एडर्स आर कास्केडेड टू फॉर्म पैरेलल बाइनरी एडर्स। एक्सप्लेन एनकोडर डिकोडर। एनकोडर कन्वर्ट करता है मल्टीपल इनपुट को इनटू बाइनरी आउटपुट में, और ये डिकोडर कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में। ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, जस्ट अ मिनट। मल्टीप्लेक्सर में ऐसे नहीं है, क्या था मल्टीप्लेक्सर, ये प्रीवियस स्लाइड्स में देख लेते हैं। एक मिनट, टू रेज टू पावर n इज टू 1 मल्टीप्लेक्सर में आना था। ठीक है, 2 रेज टू पावर n 1 जो हम ये में एनकोडर डिकोडर में है। 2 रेज टू पावर n इज टू n एनकोडर के लिए, और n इज टू 2 रेज टू पावर n जो है डिकोडर के लिए, क्योंकि एनकोडर एनकोड कर देता है ज़्यादा इनपुट्स को थोड़ी आउटपुट में, और जो आप जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वो उसको फिर कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट में मल्टीपल आउटपुट की फॉर्म में। तो दे आर वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड मेमोरी सिस्टम। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन आपने 10 मार्क्स के लिए भी तैयार करना है। उसकी एप्लीकेशंस, मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करता है 1 ऑफ मैनी इनपुट जो कि सिलेक्ट लाइन्स यूज़ करते हैं, रिड्यूस करता है वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को, डेटा राउटिंग, अरिथमेटिक सर्किट, बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन में इसको यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4/1 मार्क्स का है। ये आपने उसमें के मैप की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले आपने सेलेक्ट करनी है ए बी एज ए सिलेक्ट लाइन,
फिर मैप करना है सी वैल्यूज़ को इनपुट में कनेक्ट करना है, इनपुट को उसके अकॉर्डिंग, फिर आउटपुट आपके पास रियलाइज जो आउटपुट आ जाएगी आपके पास। देन सिक्वेंशनल लॉजिक सर्किट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो स्टोर करता है 1 बिट ऑफ डेटा को, चेंज करता है स्टेट जो बेस्ड है क्लॉक इनपुट के ऊपर। रेस अराउंड कंडीशन होती है, रेस अराउंड कंडीशन अक्कर करती है जे के फ्लिप फ्लॉप में, और व्हेन आउटपुट टॉगल करती है कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग क्लॉक पल्स के लिए। नेक्स्ट है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप रिमूव करता है इनवैलिड स्टेट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, और ये टॉगल करता है जब दोनों इनपुट्स हाई हो। 10 मार्क्स में मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप और रेस अराउंड कंडीशन। मास्टर स्लेव जे के जो है वो यूज़ करता है 2 फ्लिप फ्लॉप्स को रेस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। मास्टर वर्क करता है राइजिंग एज के ऊपर और स्लेव वर्क करता है फॉलिंग एज के ऊपर, और ये इंश्योर करता है स्टेबल आउटपुट को। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में आपने जैसे क्वेश्चंस टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या बताओगे आप इसमें कि टी फ्लिप फ्लॉप टी जब 1 है एंड 4 क्लॉक पल्स इसके लिए हमने फाइंड करना है। तो इनिशियली क्यू की वैल्यू 0 है तो टॉगल ईच पल्स को करेगा 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0 होगा, ठीक है, टॉगल करेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में what is CPU? CPU is the brain of computer, perform arithmetic, logic and control operation. RISC architecture uses simple instruction with fast execution pipeline. And explain von Neumann architecture. von Neumann architecture यूज़ करता है सिंगल मेमोरी को डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए, और ये सिंपल है बट सफ़र करता है फ्रॉम बोटलनेक प्रॉब्लम से। एक्सप्लेन कॉमन बस सिस्टम इन ए डिटेल। कॉमन बस सिस्टम इंटरकनेक्ट करता है सीपीयू कंपोनेंट्स को यूजिंग डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस। ये रिड्यूस करता है वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 में यूनिवर्सल गेट्स, के मैप, न्यूमेरिकल, सोप और पोज हो गया। फिर यूनिट 2 में से जो निकलते हैं फुल एडर का क्वेश्चन होता है, मग्स इम्प्लीमेंटेशन, एनकोडर डिकोडर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप, रेस राउंड कंडीशन, काउंटर्स के बारे में। देन फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो यूनिट है उसमें सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क और वर्सेस सिस्क, कॉमन बस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट निकल रहा है। ये हमारे पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, एफ इजिकल टू ए प्लस ए इज कॉम्प्लीमेंट बी दिया हुआ है, तो आपने पहले अब्जॉर्प्शन लॉ इम्प्लीमेंट करना है। ए प्लस ए इज बी कैसे, अब जो ये ए है आपने इसका क्या किया, इन दोनों में से यहाँ पर ए प्लस ए इज कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी दोनों को अलग अलग कर लिया, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए इंटू ए बन जाएगा और ए इज कॉम्प्लीमेंट बी के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए प्लस ए इज कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है। फाइनली जो आंसर रहेगा हमारे पास एफ इजिकल टू ए प्लस बी आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड है, थ्योरम से, ए प्लस बी इज होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या है, जब हमने ए प्लस बी इज होल कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया तो ए इज कॉम्प्लीमेंट, बी इज कॉम्प्लीमेंट और प्लस का क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया ए प्लस बी इज होल कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ए डैश बी डैश प्लस ए, और फिर अप्लाई किया एब्जॉर्प्शन, तो ए इसने ए कॉम्प्लीमेंट इस दोनों को ही एब्जॉर्व कर लिया, तो फाइनल आंसर एफ इजिकल टू ए इज कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल के मैप बनाना है, तो के मैप आपको बता ही दिया था कैसे बनाना है, ये तो स्टेप लिखे हैं आपने खुद बनाना है। ज़ीरो 1 2 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 यहाँ पर ए बी सी 0 0 0 1
1 1 1 0 0 और 1, ए इज कॉम्प्लीमेंट ए, यहाँ पर बी इज कॉम्प्लीमेंट, सी इज कॉम्प्लीमेंट, बी इज कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी इज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट 1 3 5 और 7, तो यहाँ से क्या कॉमन आया हमारा, सी कॉमन निकल गया। फिर उसके बाद पोज टू एसओपी कन्वर्जन, तो फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करोगे मिन टर्म्स में, यहाँ पर पाई एम कैपिटल एम लिखा है तो ये पोज की फॉर्म में है, सिग्मा एम 135 इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे, ये देखो ए और बी से ले लो, 0 1 1 1 1 0, जीरो 1, ए इज कॉम्प्लीमेंट ए, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0 पर रखो, 0 पर मैंने यहाँ पर 0 ले ली, 2 पर 0, 4 पर 0, 6 पर 0, जो बचा वो हमारा क्या हुआ, SOP 1 1 1 ऐसे। तो ये हमारा सोप में कन्वर्जन हो गई जो रेस्ट, और ये हमारी पोज के अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे निकलेगा कॉमन, ये आएगा एज डैश, दोनों में कॉमन ए सी डैश, इधर ए ये चीज़ आ जाएगी, और ए डैश सी डैश प्लस ए सी डैश कॉमन, ए डैश प्लस ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये सी इज कॉम्प्लीमेंट। तो जो पोज होता है सोप का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये प्रूव हो गया। हाफ एडर इनपुट आपके पास ए 1 है, बी भी 1 है, तो सम क्या होगा, ए इज एक्सोर बी और कैरी ए इंटू बी, ये आपने ट्रूथ टेबल बना के दिखा देना है। ए बी सम कैरी 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1। तो जब ये यहाँ पर सम अगर हम सम कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, जस्ट एक मिनट, सम करना था ना हमने, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 1 कैरी, ये चीज़ ऐसे आनी थी। तो यहाँ पर 1 1 है, तो ए इज कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी इज कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है, ए एक्सोर बी के इक्वल होता है। तो ये आपका एस आ गया, सी में यहाँ पर आ रही है वैल्यू, तो ए इंटू बी, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, सम 0 है, कैरी 1 है। नेक्स्ट है फुल एडर वाला केस। फुल एडर केस में भी मैंने कल करवाया था फुल एडर, वही एग्जांपल देके आपने इसको समझा देना है। एक्सोर सम भी 1 होएगा, कैरी में 1 आएगा। पैरेलल बाइनरी एडर में अब यहाँ पर वैल्यू गिवन है, जैसे ऐड करना है, 0 1 0 1 लिखा है, प्लस किया 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी। तो ऐसे हम पैरेलल बाइनरी को ऐड करते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मग्स आउटपुट। आपके पास वैल्यू गिवन है SISO इक्वल टू 10, IO 1 है, I1 0, I2 1 है, I3 0 है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करो सेलेक्ट को। सेलेक्ट हमारा फर्स्ट क्या है, I0 से आपने क्या करना है, I2 में कन्वर्ट करना है। आउटपुट आपके पास I2 आ जाएगी, फिर आपके पास फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सिक्वेंशनल सर्किट JK फ्लिप फ्लॉप, जो कल करवाया था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जब J की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू 1 है, तो आपका जो QN है वो 0 होगा, और J इक्वल टू K जब 1 है तो क्या होगा, टोगल। तो QN प्लस 1 क्या होगा, 1, QN प्लस 1 इक्वल टू 1। ये रिपीट हो गया, मतलब सिंपली याद रखना QN प्लस 1 इक्वल टू 1 रहेगा। कब, जब J और K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो QN 0 होगा, QN प्लस 1 इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेट उसकी 1 होएगी। T फ्लिप फ्लॉप में अगर T की वैल्यू 1 है तो इनिशियली Q की वैल्यू क्या होएगी, 0, और क्लॉक पल्सेस कितने दिए हैं इसके, 5। तो 0 क्लॉक पल्स पर Q 0 था, 1 प्लस जब 1 क्लॉक पल्स हुआ तो 0 से 1 हो गया, 2 पर फिर 0 हो गया, 3 पर फिर 1 हो गया, 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में ये आ गया आपको। फाइनली फिफ्थ जब क्लॉक पल्स आई तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। तो आंसर फाइनल क्या आ गया, 1 आ गया। रेस अराउंड कंडीशन में क्लॉक विड्थ अगर ग्रेटर देन प्रोपागेशन डिले से बड़ी है, अगर क्लॉक विड्थ इज ग्रेटर देन प्रोपागेशन डिले, तो इसका मतलब है J और K दोनों इक्वल टू 1 है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो हमारी आउटपुट है वो टॉगल करेगी कंटिन्यूसली रेस अराउंड कंडीशन जब तक अक्कर नहीं हो जाता। नेक्स्ट उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एड्रेसेबल मेमोरी, एड्रेस बस आपके पास गिवन है 16 बिट्स। फर्स्ट स्टेप में मेमोरी लोकेशन बतानी है आपने। तो यहाँ पर क्या ये हमारा 216, 2 रेज टू पावर 16, ये 2 रेज टू पावर 16 जो है वो 65,536 के इक्वल आया। ये ऐसे मेमोरी लोकेशन फाइंड करनी है आपके पास, ये मेमोरी लोकेशन आ जाएगी। इसमें हमारे पास बस विड्थ दी है 16 बिट, 4 साइकिल्स दी हैं, तो 16 इंटू 4 करोगे 64 बिट्स आएगा, तो ये बिट्स इतना ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन लेंथ में ऑप कोड 6 बिट दिया है, एड्रेस 10 बिट्स दिया है, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आपको माइंड में रखने हैं, 3-4 वेरिएबल्स, के मैप, बुलियन, सिंप्लीफिकेशन, डी मॉर्गन्स न्यूमेरिकल, इनको माइंड में रख के चलना है। फुल एडर, सम्स, बाइनरी एडिशन, मग्स, आउटपुट्स वगैरह ये दिमाग में लेके चलो। J के T फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, रेस अराउंड कंडीशन, मेमोरी साइज न्यूमेरिकल, बस विद कैलकुलेशन। तो ये मैंने आपके साथ इस वीडियो में यूनिट 4 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर योर एग्ज़ाम डिस्कस किए हैं। बट फिर भी आपने अपना सिलेबस एक बार रीड आउट करने के बाद ही इसको रिवाइज करना है। ठीक है, और मतलब इनको अच्छी तरह से करके ज़रूर जाना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स so that they can take benefits from these videos.